मैन ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स वो आपको लर्न है बेटा? यस मैम। ठीक है, बताओ बेटा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਨਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। कैसी होनी चाहिए ड्रेसिंग सेंस? ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਕਲੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ यस। ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। और बेटा तो कॉमन सेंस की बातें हैं, जल्दी से बताओ। अमन हाँ जी मैम। अमन बेटा देखो, ग्रूमिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों जरूरी है ग्रूमिंग? ਵੀ ਮੈਮ ਹਨਾ ਵੀ ਹਨਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੇ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਗੁੱਡ ਹਾਈਜੀਨੀਅਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਾ ਬਾਥਿੰਗ ਡੇਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ठीक है। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ 'ਚ ਮੈਮ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਤੇ ठीक है। और बेटा कैसे आपके हेयर्स फॉर मेंस, उनके हेयर्स कैसे होने चाहिए? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰਸ ਮੈਮ ਕਲੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ यस। ਤੇ ਨੋਨ ਆਇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। और ਤੇ ਮੈਮ ਹਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ब्लीचिंग नहीं की होनी चाहिए। और ਤੇ ਮੈਮ ਜੋ ਹਨਾ ਉਹ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਬਲੀਚਡ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। फॉरहेड पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, हेयर स्टाइल है ना, फॉरहेड पे आगे बाल सुट लेंगे ने, वो भी नहीं ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ करना। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। और हेयर स्प्रे अप्लाई करनी है? ਨੋ ਮੈਮ ਉਹ ਅਲਾउड ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। सिंपल से कंजर्वेटिव से हेयर स्टाइल करने हैं, ठीक है। और बेटा फॉर लेडीज कैसी होनी चाहिए हेयर स्टाइल? ਮੈਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹ ਬਨ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਸ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੇਅਰ ਪਿਨ ਕਲਿੱਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਬੈਂਡਸ ਹੋਣ। यस, मतलब मल्टी कलर के यूज नहीं करने। और ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਫਰਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। और नेल्स का कैसे ध्यान रखना है? ਉਹ ਵੀ ਮੈਮ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਮਡ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਨੇਗੇ ਤੇ ਕਲੀਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ।
ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਨੇਲਸ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯੈਸ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਨਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਨਾ ਨੇਲ ਪੇਂਟਸ ਲਗਾ ਵੀ ਰਹੇ आपकी आवाज कट गई बेटा। अमन, हाँ जी मैम। हाँ जी, अगर नेल रख भी रहे हैं, नेल पेंट लगा भी रहे हैं तो कैसी लगानी है? मैम लाइट ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਨਾ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਨੇਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ठीक है। और बेटा एक्सेसरीज कैसी पहननी है फॉर मेंस? ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਬਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਵੂਮੈਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਬਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। यस। और ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਏਅਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਮੋਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। ਤੇ ਮੈਮ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡੈਂਗਲਿੰਗ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਣ। हाँ। और रिंग्स जो पहनते हैं उनके बारे में? ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਗਰਲਸ ਨੂੰ 2 ਅਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹੈਂਡਸ 'ਚ। एक एक बेटा। 2 ਰਿੰਗਸ ਅਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओनली वन देंगे ना, वन हैंड। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਨਾ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਰਿੰਗ ਅਲਾਊਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। चेन वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह पहननी है? नो मैम ਉਹ ਅਲਾਊਡ नहीं ਹੁੰਦੀ। हाँ जी बेटा। तो ਮਤਲਬ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ डिजाइन ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਅਲਾਊਡ नहीं ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। सिंपल पहननी है, कंजरवेटिव सी। ठीक है। और कौन सी मेटालिक, कौन सा उसका होना चाहिए? गोल्ड सिल्वर की पहननी है मम्मी, है ना? यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए बेटा? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਗੋਲਡ ਦੀ ਦੱਸੋ यूनिफॉर्म ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ? दोनों की बेटा, फॉर मेंस एंड वुमेन्स। ਮੈਮ ਵੂਮੈਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਲਾਊਡ ਬਟ ਹਨਾ ਜਮੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਵੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। यस। ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਸਿਲਕ ਤੇ ਕਾਟਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ। प्लेट्स हैं जो उसकी प्रॉपर पिन की होनी चाहिए ना, पिन इनविजिबल होनी चाहिए। ਹਾਂਜੀ टैटू बना होना चाहिए? ਤੇ ਹਨਾ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ? टैटू बनाने हैं? ਨੋ ਮੈਮ ਉਹ ਹਨਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਤੇ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਨੈਕ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है। फुटवेयर कैसे अलाउ होते हैं? ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਤੇ पॉलिश कितनी नहीं होनी चाहिए? ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਮ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਲੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਕਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। बट और मेकअप? ਮੈਮ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਹਨਾ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਮੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਉਹ ਆਈਲਾਈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਮੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਕਅਪ ਦਾ।
और मेकअप में ओनली सिर्फ लाइनर रहता है और क्या होता है? ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मीन्स जो भी आपका मेकअप रहता है जितना भी मतलब इसमें आईलाइनर की बात की है, लिपस्टिक की बात की है, ठीक है, और आई शेडो की बात की है, ये सारी चीजें अगर आप यूज भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी जो टोन रखनी है थोड़ी जो भी रखनी है, ज्यादा ब्राइट सा मेकअप करना है, ब्राइट सा मेकअप नहीं करना है, ठीक है, सिंपल मेकअप रखना है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आगे मूव करते हैं। ठीक है, प्लीज नोट ऑल ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स और ये तो इसमें लिखा हुआ है कि ये सोशल फैक्टर्स हैं, किसी के रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेटा पॉजिटिव इफेक्ट बताए हुए हैं ग्रूमिंग के लिए, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कैसे पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं जो अगर आप में गुड ग्रूमिंग्स हैं, ठीक है, उसके पॉइंट्स हैं बेटा, रीड करो। ऑल एम्प्लॉयज नीड टू बी वेल ग्रूम्ड एज it makes a positive impact on guests as well as on the organization. There is an attitude that radiates throughout the organization due to good grooming, ठीक है। जितने अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड आप हो वैसे ही आपसे आपको देख के पता चलेगा कि हाँ किस होटल से आप बिलोंग कर रहे हो, है ना, तो आपका जो होटल का इमेज है वो भी अच्छा बनेगा। अगर आप वेल ऑर्गेनाइज हो तो आपका होटल भी वेल ऑर्गेनाइज लगेगा, ठीक है। उसके बेटा गुड ग्रूमिंग के जो भी पॉजिटिव इफेक्ट बताए हुए हैं उसमें नंबर 1 इज इमेज बिल्डिंग एंड एनहांस ऑर्गेनाइजेशंस इमेज। बेटा ये रीड करो पॉइंट्स को। Image building enhances organization image. Working at a hotel means you are the face of the hotel, whether you are greeting a guest on arrival or cleaning their rooms. So it is of utmost importance to have high personal grooming standards and be well maintained. हाँ जी बेटा, इमेज बिल्डिंग में है वर्किंग एट अ होटल मींस यू आर द फेस ऑफ द होटल, ठीक है। अगर आप कोई भी किसी भी जॉब के में है ना होटल में कोई भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप बेटा होटल का फेस हो, ठीक है, आपने रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने होटल को, वेदर यू आर ग्रीटिंग अ गेस्ट ऑन अराइवल और क्लीनिंग देयर रूम्स, ठीक है। सो इट इज ऑफ ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस टू हैव हाई पर्सनल ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स एंड वेल मेंटेन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो हाई आपकी आप लगे कि आप हाई प्रोफेशनल में काम कर रहे हो, ठीक है, आपको कुछ ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज है, आपने ऐसे वेल मेंटेन रहना है खुद को, ठीक है, ऐसे वेल ऑर्गेनाइज रखना है खुद को ताकि देखने वाले को ऐसा पता चले कि हाँ सच्ची में ये होटल अच्छा है, ठीक है। उसके बाद है रिवील्स पॉजिटिव गेस्ट सर्विस एटीट्यूड, बेटा रीड करो कुलवीर कौर। It employees of the organization are कुलवीर कौर। Very positive guest service. Employees of the organizations are well groomed, project a positive guest service attitude, and make their interest known to other in the organization. There are more chances they will be noticed because of employees' empathic qualities, appropriateness in grooming, attitude, and dispositions. They can also help other employees to improve and uplift the standard of the organization. हाँ जी बेटा, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं आप, ठीक है। इफ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वेल ग्रूम, ठीक है, अगर आप जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में किसी होटल में काम कर रहे हैं वो अच्छे से प्यार व्यार हो रहे हैं, वो वेल ग्रूमिंग है, ठीक है, और उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, एंड मेक देयर इंटरेस्ट नोन टू अदर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ मोर चांस दैट दे विल नोटिस बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयज। तो सारे नोटिस उसको सारे मतलब अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहे हो, ठीक है, तो सारे आपको नोटिस करेंगे, ठीक है, आपकी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करेंगे वो, ठीक है, हाँ आप अच्छे लग रहे हो, ठीक है, आपका एटीट्यूड है उसे अप्रिशिएट करेंगे वो, ठीक है। उसकी वजह से बेटा जो दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी मतलब किसी को देख के हम सीखते हैं, अगर उसने वो किया तो हम भी उसी की रीस करते हैं, तो दूसरे एम्प्लॉय जो होटल में काम कर रहे हैं वो भी खुद को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, वो भी खुद के स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्हें इम्प्रूव करना शुरू करेंगे खुद दूसरों को देख के, ठीक है, तो उन्हें भी एक चांस मिल जाता है कि वो भी उनसे देख देख के इम्प्रूवमेंट करने लगते हैं, ठीक है।
समझ आ गया? Yes, नहीं आया? ma'am. आ गया, ओके। फुलफिल्स गेस्ट एक्सपेक्टेशंस, तो कैसे आपने गेस्ट की एक्सपेक्टेशंस हुआ जो भी आपसे उन्हें आशाएं उम्मीदें हैं वो कैसे आप फुलफिल करते हो? ठीक है, रीड करो कुलवीर। कुलवीर रीड करो बेटा। Fulfill guest expectations. Guests expect a high level of personal grooming and hygiene from all employees as they pay high room rates. Therefore, they expect there to be high standard of grooming and hygiene with the complements the facilities of the hotel. तो कैसे वो गेस्ट की एक्सपेक्टेशंस को कैसे फुलफिल करते हैं बेटा? अगर वो अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं, ठीक है, होटल को, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड का उसने रूम लिया है, तो वो एक्सपेक्ट भी ऐसी करेंगे कि उन्हें हाई स्टैंडर्ड की सर्विस भी दी जाए। ठीक है, जो भी उसे फैसिलिटीज मिल रही हैं वो उनकी पूरी नीड्स को फुलफिल करें। उनकी जो भी आपसे सॉरी जो भी होटल से एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी फुलफिल वो करें। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, हम ऐसे तो नहीं पे करते ना कि कुछ भी हमें कोई भी सर्विस दे दें। अगर उनकी फुलफिल होएगी तभी होता है, वो तभी पे करते हैं। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, डिलीवर्स गुड क्वालिटी सर्विस। Deliver good quality service. Employee feel good if they look good and provide service as per guest expectation. अगर कोई भी एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो खुद को सुंदर लग रहा है कि मैं सुंदर लग रहा हूँ, तभी वो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, उसकी अगर खुद की एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट हो रही हैं तभी वो अच्छे से गेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे अगर आप तैयार श्यार हो, पूरे गुड ग्रूमिंग में हो, कैसे आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा? ये रीड करो। Boost self-confidence in hotel industry look make a lot of difference if boost self-confidence and self-esteem. One feel very resumed when other people admire them and prefer to associate with them as they find them good. हाँ जी बेटा, अगर कोई भी वहां पे काम कर रहा है, ठीक है, उस होटल इंडस्ट्री में, ठीक है, हर एक की जो डिफरेंस उनमें रहता है, ठीक है, कोई ना कोई डिफरेंस लुक्स में रहता है। ठीक है, तो अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद में बनाना है, ठीक है, बूस्ट करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो आपको उसके लिए एडमायर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर खुद ही आप वेल ऑर्गेनाइज लगोगे, ठीक है, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा ज्यादा कि मैं ये वाली सर्विस को अच्छा दूंगा। खुद को अगर सही लगेगा तभी हम किसी को सर्विस अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटा गेस्ट कंफर्ट। ठीक है, a pleasing face is nice to look at. Guests like to relax in the presence of beautiful things. A pleasant face can relax the mind. Those with an aesthetic sense like to admire beautiful people and things. ठीक है, अगर बेटा आपका फेस एक्सप्रेशन ही आप ऐसे दे रहे हो, ठीक है, कि जिससे गेस्ट को लगे ये तो खुद ही दुखी है, मेरे को ये क्या सर्विस देगा, है ना, तो आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी मैटर करते हैं कि आपने अच्छे एक्सप्रेशन से उनसे बात करनी है ताकि उन्हें लगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप उनकी जो भी उनकी सर्विस थी वो फुल करोगे उसे। ठीक है, उसकी सर्विस की जो भी नीड थी जो उसकी, उसे फुलफिल करोगे अगर आप उसे अच्छे एक्सप्रेशन से बात कर रहे हो। ठीक है, तो वो इजीली आपसे कोई भी बात करेगा। अगर आप ऐसे ही पूरा बड खाने वाले मुंह पाओगे तो फिर वो आपके मतलब आगे कोई रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं देंगे वो। ठीक है, तो आपने बेटा गेस्ट है जो आए हैं आपके होटल में, उसे कंफर्ट फील करवाना है, उसे इजीली जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में अच्छे से इजीली पूछो। ठीक है, रिलैक्स रह के। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. इन्फ्लुएंस ओवरऑल पर्सनैलिटी। ठीक है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, उससे कैसे कोई गेस्ट इन्फ्लो होता है। ठीक है, कैसे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी को देख के। ग्रूमिंग एक्सटेंड हाइजीन एज इट pertains to the maintenance of good personal and public appearance. Physical appearance doesn't affect overall personality. Looks matter a lot in many situations. Every person wants to look his best.
those who are fortunate to be born beautiful or handsome have an edge over others in their public dealings. ठीक है, अगर बेटा खुद की आपकी फिजिकली भी आप मेंटली भी प्रिपेयर हो उस चीज के लिए जो आप काम कर रहे हो उसमें अपना 100% दे रहे हो, ठीक है, तो जो गेस्ट आया है आप उसे भी इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपकी बोलबानी आपकी लुक मैटर करती है बेटा। जब आप किसी से मिलते हो, किसी गेस्ट को अगर आप हैंडल कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी लुक मैटर करेगी, आप कैसे उससे कम्युनिकेशंस आपकी मैटर करेंगी, ठीक है बेटा, तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है, समझ आया? यस मैम। अमन समरी रीड कर दो बेटा। Grooming is much more than keeping clean and putting on a fresh set of clothes every day. It is an attitude, a disposition, a positive sense of self that radiates from within. Most important, it is what can mark the difference between languishing in a dead end restaurant and a hospitality job and promotion to a position of increasing responsibility and reward. The nature of work involved require a lot of physical activity. Thus, it is essential that all the employees should take extra care of their health and hygiene. Personal hygiene is an essential part of personality and personal appearance. It is vital to remember at all times that first impression counts. Customers do not want to frequent an establishment where the employees do not look after their personal standards of grooming. It would not be pleasant to be served by someone who has been poorly groomed or who accepts poor personal hygiene. बेटा ग्रूमिंग में हमने यही पढ़ा था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें अच्छे से सेटअप अपने खुद को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे हेयर स्टाइल करने, मतलब हेयर स्टाइल जैसे आपको ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स में प्रोफेशनल्स के होते हैं वैसे आपने हेयर स्टाइल्स रखने हैं, ठीक है, एक्सेसरीज वैसे करनी है, ठीक है, उससे क्या होता है बेटा आप में खुद में एटीट्यूड बनता है, ठीक है, खुद में कॉन्फिडेंस, आप पूरे फुल कॉन्फिडेंस हो जाते हो जब आप अच्छे से ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हो, ठीक है, यही होता है कि बेटा आपकी जो लुक है वो अच्छी लगनी चाहिए, हाइजीन आप लगने चाहिए, जो भी आप चीजों को यूज कर रहे हो, ठीक है, वो हाइजेनिक चीजें ही आपने यूज करनी है, ठीक है, इससे क्या होता है मतलब जो भी होटल है उसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो दूसरे मतलब जो भी गेस्ट वहाँ पे विजिट कर रहे हैं उनके ऊपर आप अच्छा इफेक्ट डालते हो ताकि वो उस होटल में बार बार आए, ठीक है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो खुद को आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि जब आपको कोई देख के कोई चीज डिसाइड करता है, ठीक है, कोई भी होटल में एंटर करेगा तो आपको मतलब जो भी इम्प्लॉयज वहां पे होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को पहले वो देखते हैं, है ना, ऐसे होता है ना जब हम किसी शॉप में कपड़े लेने के लिए गए हैं, है ना, अगर उन्होंने कपड़े अच्छे पहने होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, है ना, नहीं तो हम कुछ ना कुछ कमेंट करते ही है ना, करते हैं नहीं करते हैं अमन कुलवीर, करते हैं मैम। है ना, अगर खुद ही हम अच्छे नहीं लगेंगे तो हमारे वहां पे आना भी कोई अच्छा पसंद नहीं करेगा, क्या कोई भी उस होटल में विजिट करना उसे पसंद भी नहीं होगा, तो हमें खुद को भी हाइजीन रखना है, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ठीक है, हम ये सारा था इस चैप्टर में, बेटा इस चैप्टर की रिवीजन आप करके ले आना कल, ठीक है, कल फिर से इसका ओरल टेस्ट देना और कोशिश करना कि इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चे अटेंड करें क्योंकि आप सिर्फ दो ही हो, कुलवीर और अमन, ठीक है, कुछ उनको बोला करो ना, जितनी इतनी तो बच्चे हैं आपकी क्लास में, सबको बोला करो क्लासेस आने के लिए। पता नहीं मैम कितने बिजी ਹੁੰਦੇ हैं जी। मैं कल सुख ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ मैम, फिर और ਉਹਨੇ लाई नहीं दूसरे आई। किसी को कोई भी नहीं आता, ये सभी का लॉस है बेटा, जो नहीं लगाते हैं उनका ही लॉस है ये, ठीक है, तो आपका जो यूनिट 5 था बेटा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स ये कंप्लीट हो गया, कल इसका टेस्ट है, ओके मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू।